Students, today we'll be doing Geography Chapter 2 Endogenic Movements. Now, endogenic का meaning ही होता है something which occurs beneath the surface of the earth. So, when we are talking about endogenic movements, it means movements that are created inside the earth, यानी कि surface के नीचे. Now, you all must have noticed on earth there are many natural events which take place from time to time. कभी floods आते हैं, कभी storm आता है, sometimes there is extreme rainfall. So what happens because of the movements below the earth's surface, natural events like earthquake and volcanic eruptions also occur. तो ये जो natural events है, flood है, storm है, snowfall है, ये सब that is not inside the earth. But when there is movement below the earth, there are natural events which occur. वो natural events क्या है? जब surface के नीचे movement होता है, earthquake होता है और volcanic eruptions. Now for organisms living on surface of the earth, these events, that is the earthquakes and volcanoes, are very disastrous. See, here is an article given what happened when an earthquake had struck in Nepal. तो इट इज़ वेरी डिज़ास्ट्रस, बहुत सारा प्रॉपर्टी एंड लाइफ दोनों का नुकसान होता है. देर इज़ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ नेचुरल calamities. Now here in this chapter we will study about such endogenic movements. Now you all must be thinking कि when there is movement within inside the earth, why is it affecting the people on the surface? Okay, so here is a good activity given in your book for showing that. See, there are piles of books kept and some things, small things are kept on that. So now consider this as the earth. अभी earth जो है काफ़ी बड़ा है और उसके अंदर भी हमें पता है क्या है, rocks है, soil है और बहुत सारे layers होते हैं ऐसे rocks के. Okay, it is not one plain piece, it is just like this only, layers, and these layers are also known as the tectonic plates. तो plates कैसे होते हैं? वैसे ही rocks के बड़े बड़े huge tectonic plates होते हैं. Now see, when we remove one book, what happens? The whole surface, it is shook, and the things which are there, they are shaking. The same things happen when earth is moving or in the interior one tectonic plate collides with the other, तो झटके लगते हैं और वो झटके से जो surface पे है वो गिरने लगता है. Now see, one more example is, now here also there are tectonic plates. These are the buildings which are being shown. For example, if we shake it a little bit, what happen? All the buildings and everything will fall same way as this. Okay, so जो भी अर्थ के अंदर जो भी मूवमेंट होता है उसका इफेक्ट सीधा हमें सरफेस पे देखने को मिलता है. Now earthquakes and volcanoes occur because of instability in the interior of the earth. यानी कि अर्थ के अंदर जब भी instability आ जाती है, यानी कि something is not in place and it is unstable, तो कुछ मूवमेंट ऐसा हो गया जिसकी वजह से जो अर्थ का इंटीरियर है वो हिल जाता है. तो बिकॉज ऑफ दैट अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस अकर. दिस इंस्टेबिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू द मूवमेंट्स अकरिंग इन द अर्थ्स इंटीरियर. तो ये इंस्टेबिलिटी क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट्स दैट अकर इन द अर्थ्स इंटीरियर. ओके, नाउ दीज मूवमेंट्स इन द अर्थ्स इंटीरियर अकर इन द upper layer of the mantle. Now for this you have to first know the different layers in the interior of the earth. I'll just show you a pic of that. See, this is the interior of the earth. I hope you'll remember, this is your last year's book. See, in this is the inner core, outer core, दिस इज़ द मेंटल वी आर टॉकिंग अबाउट. जब यहाँ पे मूवमेंट होता है तो उसका इफेक्ट हमें सरफेस पे यानी कि क्रस्ट पे देखने को मिलता है. सी इन दिस पिक यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, दिस इज़ द सरफेस.
and when there is movement in this part, there is the upper part of the mantle, then we observe earthquakes and volcanic eruptions. Okay, now generally the movements in the earth's interior occur in the upper layer of the mantle, which I showed you just now. Now there are radioactive materials in the mantle. Mantle is the part where the movements take place. तो वहाँ पे कुछ रेडियो मटीरियल्स होते हैं जिसमें से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है. ओके, बहुत सारी एनर्जी, और ये एनर्जी ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. तो दीज एनर्जी वेव्स ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो अर्थ के इंटीरियर में वेव्स की तरह ये एनर्जी है फ्लो होती है. तो ड्यू टू सच अ फ्लो ऑफ एनर्जी इनस्टेबिलिटी इज कॉज्ड. और ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ट्रमेंडस है, बहुत ही फोर्स होती है इस एनर्जी में. तो जब ये फोर्स से ट्रेवल होता है तो क्या होता है, उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आती है इन द मेंटल, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंस्टेबिलिटी देर इज द मूवमेंट इन द इंटीरियर. द मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड द लैंड फॉर्म्स दे प्रोड्यूस. अभी ये जो मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी रिलीज बाय दिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उसके वजह से उसके बेसिस पे हम इन मूवमेंट्स को वेलोसिटी, डायरेक्शन और द लैंड फॉर्म्स दे प्रोड्यूस, इन बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. हियर इज अ टेबल गिवन एंड नाइसली एक्सप्लेन्ड. ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी मूवमेंट्स कैसे होंगे, स्लो मूवमेंट्स होंगे विच अकर कंटिन्यूसली, like formation of mountains and continents. तो now understand, ये जो इंटीरियर में मूवमेंट्स होते हैं उसकी वजह से माउंटेन्स भी फॉर्म होते हैं और कॉन्टिनेंट्स भी फॉर्म होते हैं. देन ड्यू टू वेलोसिटी देर आर सडन मूवमेंट्स ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज. तो वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी. देन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन जो है इस एनर्जी का हॉरिजॉन्टल हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है. देन लैंड फॉर्म्स विच आर बिल्ड बिकॉज ऑफ दीज मूवमेंट्स आर कॉन्टिनेंट. यू नो वी आर लिविंग ऑन द लैंड, दैट इज द क्रस्ट. तो एक तरह का वी आर लिविंग ऑन द कॉन्टिनेंट. देन इट क्रिएट्स प्लेटोज, हाईलैंड्स एंड ऑल दीज द क्रस्ट पार्ट. देन it also builds mountains, folding and faulting. You must have heard about fold mountains. Okay, तो ये mountains भी बनते हैं because of these movements. Now based on velocity we had seen there is first slow movements. Now slow movements, the effect of slow movements can be seen in the form of formation of mountains, continents on the earth's crust. Now this can be explained as follows. अभी जब भी स्लो मूवमेंट्स होता है दो इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके. ओके, एक प्रेशर होता है और एक टेंशन होता है. प्रेशर कब होता है, व्हेन इट इज़ पुशिंग टूवर्ड्स ईच अदर, वेव्स मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर. यू नो हियर देयर इज़ कंप्रेशन, तो यहाँ पे दब जाता है कोई भी चीज़. और टेंशन कब होता है, जब वेव्स आर मूविंग फार अवे फ्रॉम ईच अदर. तो अभी यहाँ पे देखो, जब waves are moving towards each other, what will happen? Of course this land is there, suppose for example. So what happens, it is overlapping each other. Okay, तो overlap हो जाता है और fold हो जाता है. और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है ये जो लैंड है. ओके, तो बीच में एक गैप बन जाता है. ओके, अभी यहाँ पे द इफ़ेक्ट्स, दीज आर द इफ़ेक्ट शोन ऑन हार्ड रॉक्स. नाउ ऑन सॉफ्ट रॉक्स, यानी कि जो सॉफ्ट मिट्टी होती है इससे जो बनते हैं वो, उसमें क्या होता है, सी देयर इज़ द फोल्डिंग इफेक्ट विच वी कैन सी इन सॉफ्ट रॉक्स बिकॉज ऑफ compression, and because of tension what happens, there is a fault plane. ओके, यहाँ पे दिख रहा है ये जो सॉफ्ट रॉक्स है दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. हियर दी हार्ड रॉक्स आर मूविंग अपार्ट बट दे आर नॉट ब्रेकिंग अप, बट हियर देर इज अ ब्रेकिंग अप, देर इज अ फॉल्ट इन बिटवीन. ओके.